Okay, so last week you have submitted a approved circuit diagram, and this week we will start with something called as PCB. So you have already received the instruction how to make a PCB last week only. Please complete it by 29. Now on the 5th, you have PCB assessment. So whatever PCB you have made, that will be evaluated by your faculty in charge. We just log in and check the assignment. So PCB assignment 7B and soldering is due. Now, if you cannot make a PCB by 5th, then you have to perform at least the soldering part, which is on the general purpose PCB. So if your PCB is not ready, but you still want to get marks for your PCB soldering, you have to submit it by 5th of September. For that, I will show you how to do the PCB live. Also, your next assignment is methodology section. So let us assume that you have soldered all the components. That means you have completed the circuit part. So you have to mention the entire methodology, why you chose the component, from where you purchased the components. Then again, you don't have to write source as college has given you the component. You already have searched the website where you can get those components from. So you have to mention that. Then if somebody wants to repeat your entire project, you have to give entire step-by-step mechanism to complete that project. So that is the submission on the 5th September. That is PCB assessment. PCB assessment मतलब क्या होगा? आपने जो PCB कंप्लीट करके फोटो डाला है, उसमें कुछ शॉर्ट है या कुछ अंडर रीच या ओवर रीच, दो कंडीशन होते हैं. तो कोई ट्रैक ब्रेक है या कोई ट्रैक शॉर्ट है, ये चेक करके आपके फैकल्टी आपको शायद 4 में से मार्क्स देंगे. तो पीसीबी के टोटल 5 मार्क होंगे शायद, उसमें से सिर्फ 1 मार्क ऑन टाइम सबमिशन है. तो दैट इज ओके. इवन इफ यू कैनॉट कंप्लीट योर पीसीबी बाय 29, यू स्टिल हैव टू कंप्लीट इट बाय 5th. So by this way we can ensure that you are getting the marks for your PCB assignment. And obviously soldering, I have given you the option. If you cannot make your PCB by 5th also, you can still solder it on a general purpose PCB. Solder any 2-3 components to prove your soldering skills and upload them. ठीक है. और उसके लिए प्रोजेक्ट लैब में वो पीछे जो अनयूज कंपोनेंट्स है उसको यूज कर सकते हो. एंड जस्ट सोल्डर 1 or 2 components to show how the soldering is done. Next is once you complete. Now what is the difference between 8B? This is the soldering of the component on the PCB. तो यहाँ से 5th सितंबर को ही आपके ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि उसके बाद यू कैन नॉट कंटिन्यू इंडिविजुअली. सो यू विल ज्वाइन इनटू द ग्रुप्स. और उसके बाद 12 सितंबर की जो असाइनमेंट होगी वो ग्रुप में सबमिट होगी. सो अगर आपके 1/3 ऑफ द क्लास पीसीबी नहीं बना पाए, जो आधे लोगों का प्लान है ही, पर फिर भी आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो अहेड विथ योर ओन प्रोजेक्ट as long as possible, because that will be the best case where you will be the first author and you are the person who is completing the project from start to end. अब प्रोजेक्ट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि डेट में ऑन द गिवन डेट सबमिट करना. और इस एक ही वजह से आपने कितने भी रिक्वेस्ट किए, कितने भी मेल डाले, हमने एक बार भी डेट एक्सटेंड नहीं किया है. तो इस बार भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक लर्निंग है कि ऑन टाइम बाय हुक और बाय क्रुक उसको करके दिखाना है. और ये ज्यादा जरूरी स्किल है प्रोजेक्ट की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आप 10 साल बाद भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहता. और इंडस्ट्री को ऑन टाइम डिलीवरेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल एम्प्लॉय में चाहिए. सो दैट इज द ओनली रीजन वी आर बीइंग वेरी रूड टू यू एंड नॉट एक्सटेंडिंग एनी डेडलाइंस. ठीक है. Now, coming to the 12th September assignment, obviously soldering component. Can anyone give me one soldering iron? I will show you how to solder. एक पीसीबी, एक सोल्डर वायर और एक सोल्डरिंग आयन दे देना. ठीक है. आई गॉट द सोल्डरिंग आयन हेयर.
इनको सर उधर हटा और वायर कैसे का ग्रेट. So I think I need to stop the screen sharing, but I'm not stopping the recording. So let's assume. ठीक है. तो ये आपका कॉपर क्लैड है ऐसे अस्यूम करते हैं. और उसको आपको ये जो स्टील वूल है इसे घिस के लेना है. तो आप जो भी नेल आर्ट लगाया हुआ है या व्हाइटनर या परमानेंट मार्कर जिससे भी आपने बनाया है वो इस स्किल वूल से घिसने की वजह से निकल जाएगा. अगर आपने फोटोलिथोग्राफी मेथड से किया है तो भी उसके ऊपर एक लेयर रहता है फोटोरेजिस्ट का, वो भी इससे निकलता है. और अगर आपने सीएनसी से किया है तो कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े कट होते हैं, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांस है, तो वो भी इससे निकल जाते हैं. तो बेसिकली बर्तन जैसे घिस घिस के साफ करते हैं वैसे आपको कॉपर क्लैड पहले तो उनसे साफ कर लेना है जस्ट बिफोर द सोल्डरिंग. फॉर एग्जाम्पल आप अगले हफ्ते पीसी बनवाना होगे, उसके नेक्स्ट वीक अगर तुम सोल्डरिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जिससे सोल्डरिंग ठीक से नहीं होता. तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा पहले तो वुल से घिस के ही लेना है बिफोर यू स्टार्ट द सोल्डरिंग. देन यू इंसर्ट योर कंपोनेंट. आपका ड्यूअल इनलाइन पैकेज होगा तो नीचे से आएगा कंपोनेंट और यहाँ से लेकर आएंगे. उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, पिन नंबर 1 जो है वो मिरर हो जाता है. सो व्हेन यू इंसर्ट पिन नंबर 1 ऑन दिस साइड, उल्टा करके पिन नंबर 1 कम्स ऑन द अदर साइड. ठीक है. अगेन ऑन द कैमरा इट्स गेटिंग मिरर्ड, सो यू हैव टू रिमेम्बर नॉट सीधा डालो. व्हेन यू फ्लिप इट, पिन नंबर 1 गोज ऑन द अदर साइड. ये एक चीज ध्यान रखनी है. सोल्डर कोई चीज करेंगे तो वो सिर्फ सस्ती वाली चीजें याद रखना, जिसका मतलब कोई भी आईसी पीसीबी पे सोल्डर नहीं होता, आईसी होल्डर सोल्डर होता है. आईसी होल्डर 3 रुपए का मिलता है, आईसी हजारों का हो सकता है. इवन आपके मदरबोर्ड पे भी देखा होगा, प्रोसेसर बाहर से लगता है, उसका होल्डर मदरबोर्ड पे सोल्डर रहता है. सारे कैपेसिटर रेजिस्टर डायोड रेजिस्ट और जो भी बक कनेक्टर्स है वो लो कॉस्ट कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं, लेस देन 10 रुपीज, दैट यू कैन सोल्डर. क्लियर. एलसीडी हो गए, रिबन केबल हो गए, सर्वो मोटर हो गए, कोई भी चीज इस पे सोल्डर नहीं करनी है. यू हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड एज बक कनेक्टर, which is again a kind of temporary connection. You get many male to female connections like this. I have one sample connector for it. You can see it. So इस तरह के कनेक्टर होते हैं. ये कनेक्टर अभी मेरे हाथ में जो है वो फीमेल है. ठीक है. और इसके अपोजिट में मेल कनेक्टर भी मिलते हैं. तो इफ यू सी दिस सैंपल पीसीबी somebody had soldered या किसी पीसीबी, इसमें देखोगे तो एक भी कंपोनेंट रेजिस्टर और कनेक्टर्स के अलावा फिजिकली सोल्डर्ड नहीं है. सिंगल बोर्ड पीसीबी या जो चिप ऑन बोर्ड होते हैं उसमें आईसी सोल्डर्ड होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर रीजन के लिए होते हैं. सोल्डरिंग की स्किल क्या है, आपको आपका सोल्डर वायर जो है, आप मोस्टली अकेले रहोगे या ग्रुप में रहोगे तो इनिशियल सोल्डरिंग जो है वो आपको अकेले को करनी है. तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि 45 डिग्री लॉजिक यूज करो. कुछ लोग आपको बताएंगे कि पहले सोल्डर वायर लो, उसको वायर पे कनेक्ट करके सोल्डर मेल्ट कर लो और फिर कनेक्ट करो. पर मेरा सोल्डरिंग का तरीका है कि सोल्डर वायर और आयन एक ही टाइम पे 45 डिग्री में कंपोनेंट को कनेक्ट होते हैं. ठीक है. तो सोल्डर पेस्ट मेल्ट ही उधर होती है. जनरली शोल्डर वायर के अंदर कोर से लीड मतलब लीड मटेरियल शोल्डर का जो रिमूवर रहता है, डस्ट रिमूवर, वो निकलता है और उसकी वजह से क्लीनिंग भी उधर ही हो जाती है और शोल्डर जॉइंट अच्छे से हो जाता है. सो द बेस्ट वे टू सोल्डर इज आपके शोल्डर वायर शोल्डर आयन एक ही टाइम पे टच करो जो भी कंपोनेंट लेग को आप शोल्डर करना चाहते हो, और लेग को टच करो, वो मेल्ट होके नीचे कॉपर पे गिरेगा और वहां चिपक जाएगा. ठीक है. तो बाद में ये रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको कुछ अच्छे और खराब शोल्डर के सैंपल्स दिखाता हूँ. सो आई होप यू आर क्लियर विथ योर नेक्स्ट 2 असाइनमेंट्स, दैट इज ऑन 5th. एंड एंश्योर दैट ऑन 5th, मतलब इस हफ्ते नहीं, 5 सितंबर को यू गेट इनटू द ग्रुप्स. ठीक है. तो जिन जिनके पीसीबी इंस्पेक्शन ही है 5th को, तो वो असाइनमेंट उधर के उधर इंस्पेक्ट हो जाएगी. तो आपका ग्रुप जब भी होगा 5th वाले वीक में, उस वक्त हम ग्रुप बना देंगे. मोस्टली अगला हफ्ता आप पकड़ के चलो आपका ग्रुप बन जाएगा. अभी तक इंडिविजुअल असाइनमेंट में जो भी आपने स्कोर किया है वो कंटिन्यूड होगा, एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग अ ग्रुप असाइनमेंट्स. याद रखो, ग्रुप असाइनमेंट ग्रुप बने
तो भी तीनों लोग सेपरेटली सेपरेट सबमिशन करेंगे, सेम फाइल, लेकिन 3 जना सेपरेटली सबमिट करेंगे। क्लियर? और ऑथर सीक्वेंस वैसे ही रहेगा, जिसका प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा वो फर्स्ट होगा, बाकी दो डिपेंडिंग अपॉन वर्क, जिसने ज्यादा काम किया वो क्लोजर टू द फर्स्ट ऑथर आएगा। एंड मैक्सिमम ग्रुप ऑफ 3, मिनिमम 1। यू कैन बी इन ग्रुप ऑफ 2 ऑल्सो। ठीक है, तो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।